مانچسٹر آف پاکستان فیصل میں بھی شدید اسموک، شہریوں کی آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا، شہری آنکھ، ناک، گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ تفصیلات محمد نسیم شاہ کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ صوبے کے دیگر حصوں کی طرح فیصل آباد میں بھی بدترین اسموک کا سلسلہ جاری ہے۔ پورے شہر پر دھوئیں، گرد اور ماحولیاتی آلودگی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ عوام کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس سال جو اسموگ آئی ہے یہ بدترین اسموگ آئی ہے، اس میں سانس لینا بڑا دشوار ہے اور اس میں بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ گورنمنٹ اس کے لیے ابھی تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کر رہی۔ جو لوگوں کے بچے بیمار ہو رہے، اسکول سے چھٹیاں دینا کوئی کام نہیں ہے، بچوں کو ماسک، اس کے لیے گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ یہ گاڑیوں کو دھواں اور یہ ٹریفک والے بھی کچھ نہیں کر رہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اسموک کا یہ سلسلہ آنکھوں، ناک، گلے، سانس اور جلد کی بیماریوں کا باعث ہے، جس کے لیے احتیاط اور حفاظتی اقدامات یقینی بنانا ہوں گے۔ ہمارے پاس آتے ہیں ENT کے ریلیٹڈ، تو آنکھوں کی زیادہ پرابلم ہے، آنکھوں سے پانی زیادہ بہتا ہے، تو اس کی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں، چھینٹے زیادہ ماریں اور گھر سے بلا ضرورت نہ باہر نکلیں، اور خصوصاً یہ ہے کہ جو بائک پر لوگ جاتے ہیں وہ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں تاکہ اسموک سے بچا جا سکے۔ شدید اسموک کے پیش نظر حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کے لیے ماسک کا استعمال ضروری قرار دیا گیا ہے، جبکہ موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ پہننے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ اسموک کے مضر اثرات سے بچا جا سکے۔ انسداد اسموک کے حوالے سے حکومتی کارروائیاں اپنی جگہ، مگر عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ اس حوالے سے حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نسیم شاہ، ABN نیوز، فیصل آباد۔ سرگودا کی فضا دھول مٹی سے آلودہ، کوالٹی انڈیکس خطرناک حد عبور کرنے لگا۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں، کارپوریشن کا عملہ، جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کو آگ لگانا، محکمہ ماحولیات اور ضلع انتظامیہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عقیل خان کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح سرگودا میں بھی اسموک خطرناک حد تک شدت اختیار کر گئی ہے۔ سرگودا میں رات کے اسموک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ 9 سے 10-11 بجے تک جاری رہتا ہے۔ حد نگاہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ اسموک کی وجہ سے بچوں میں نزلہ، زکام اور گلے اور سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، کارپوریشن کا عملہ جو باقیات کو آگ لگاتا ہے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، اینٹوں والے بھٹے، فیکٹریاں اسموک میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں، اور ضلعی انتظامیہ اور ماحولیاتی ادارے اسموک پر کنٹرول کرنے کے لیے کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسموک کو کم کرنے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے۔ ماسک کا استعمال بھی شہریوں میں بہت کم دکھائی دے رہا ہے، اور دوسرے ضلع میں تو تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، لیکن سرگودا میں اسکول، کالج وغیرہ کھلے۔ اوکاڑا میں اسموگ اور فضائی آلودگی کا انڈیکس 260 تک پہنچ گیا۔ فضائی آلودگی میں اضافے کے باعث شہری گلے اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہر اور گردنوا میں شدید اسموگ اور دھند کا راج ہے، حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی۔ شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کے مطابق ڈرائیور حضرات حادثات سے بچنے کے لیے فوگ لائٹس کا استعمال کریں، گاڑیاں قافلوں کی صورت میں سفر کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ حافظ آباد شہر اور گردنوا میں اسموگ کے ساتھ شدید دھند کا راج ہے۔ اسموگ کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی، جس کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ اسموگ کے باعث فضا ابرآلود ہونے کے باعث شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ اسموگ کے باعث شہری آنکھ، ناک، سانس اور جلد کی امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پبلک مقامات پر ماسک پہننا یقینی نہ بنایا جا سکا ہے۔ راجن پور کے لاگے کوٹ مٹھن میں اسموگ کی شدت میں خطرناک حد تک اضافہ، حد نگاہ 0 ہو گئی ہے۔ فضائی آلودگی کے باعث کراچی سے پشاور انڈس ہائی وے پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے۔ کوٹ مٹھن میں اسموگ کی شدید کی وجہ سے کاروبار زندگی سست روی کا شکار ہے۔ حد نگاہ 0، مسافر گاڑیوں کو آمد و رفت کے لیے شدید مشکلات کا سامنا، ٹریفک حادثات میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ شہریوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ شدید اسموگ سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ دوسرے شہروں کی طرح قصور میں بھی اسموگ کا راز، اسموگ شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ ضلع انتظامیہ اسموگ کے تدارک کے لیے ناکام نظر آتی ہے۔ دیکھتے ہیں میاں کاشف کی یہ رپورٹ۔ لاہور کے ہمسایہ شہر قصور میں بھی اسموگ نے پنجے گاڑ لیے۔ فضا آلودہ ہونے کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ سانس اور دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کے ساتھ آنکھوں کی انفیکشن کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اس حوالے سے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموگ فضائی آلودگی کی ایک شکل ہے اور یہ دھوئیں، دھند اور گرد و غبار سے بنتی ہے۔ آج کل پاکستان کے بہت سے شہر اسموگ سے متاثر ہو رہے ہیں اور لوگوں میں سانس کی اور آنکھوں کی بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر کی کھڑکیاں، دروازے بند رکھیں،
बाहर निकलना है तो कोशिश करें कि ज़्यादा रश और धुएं वाली जगहों पे ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। शहरीन का कहना है कि स्मोग के पेश नज़र शहरी बिला जवाज घर से ना निकलें, मास्क और चश्मे का इस्तेमाल लाजमी करें। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। गढ़ा मोड़ में धुंध और स्मोक की लहर बरकरार। स्मोक धुंध की शदीद में इजाफे की वजह से हद निगाह सिफर हो गई। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह मुल्तान डिवीजन के शहर गढ़ा मोड़ और गिरदनवा में धुंध और स्मोक की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। स्मोक की वजह से मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। स्मोक की शदीद लहर ने शहरियों को गले और आंखों के मसाइल में मुब्तला कर दिया, जिससे सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। शदीद धुंध और स्मोक की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। डॉक्टर और तिबी माहिरीन ने शहरियों को ऐनक और मास्क का इस्तेमाल और महकमा सेहत के SOP पर अमल करने का कहा है। चौंडा शहर और गुर्दनवा में स्मोक ने फिजा को आलूदा कर दिया। फिजा आलूदा होने की वजह से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। चौंडा शहर और गुर्दनवा में इलाका मंडी, ठरो, सब्ज, पीर, कंगरा में भी बढ़ती हुई स्मोक समेत फिजाई आलूगी की रोकथाम के लिए सरकारी इक़दामात गैर मौसर हो गए। ईंटों के भट्टे और फसलों की बाकियात का धुआं माहौलियाती आलूदगी सबब बन रहा है। माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम करने वाले इदारों की कारकर्दगी भी सवालिया निशान बन गई। मौसमियाती तब्दीली और गैर मौसर इक़दामात की वजह से एयर इंडेक्स क्वालिटी मजीद खराब हो सकती है। शहरियों की बड़ी तादाद आंखों, गले, सांस के अमराज में मुब्तला होने लगी। शहरियों का पंजाब हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दीगर शहरों की तरह तौसा शरीफ में भी स्मोक का राज है। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। सुबह, दोपहर, शाम हर तरफ स्मोक ने डेरे डाले हुए हैं। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इतनी स्मोक नहीं की है, इन्हें को जरना पर फिल्म और कोई ना इंतजाम किया हुआ है और दरख्तें नहीं जरना सजाकारी करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरा है। खास तौर से जेड़े लोग छोटे मरीज हैं, सांस चढ़ने वाले लोग हैं, वो लोग नहीं जरना बहुत ज़्यादा नहीं। जी, स्मोग चारों तरफ आप देख रहे हैं, स्मोग है जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। खांसी और दमे की बीमारियां फैल रही हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि शहरियों को चाहिए कि हर वक्त मास्क पहने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसके अलावा हुकूमत और शहरी मिलकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि माहौल साफ हो और इस तरह की जो आफतें हम कहेंगे इससे बचा जा सके। चीचा वतनी और गिरदनवा में स्मोक का राज हद निगाह सिफर तक पहुंच गई है। बच्चों और बड़ों को सांस लेने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्मोक से आंखों में जलन और गले के इन्फेक्शन में इजाफा हो गया। अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। डॉक्टर्स का कहना है कि बिला जरूरत बाहर निकलने से इज्तनाब करें। बैरूनी सरगर्मियों के दौरान चश्मे और मास्क का इस्तेमाल करें। सिगरेट नोशी से इज्तनाब करें। घर के अंदर मौजूदगी के वक्त खिड़कियां, दरवाजे और दूसरे हवा के दाखिली रास्तों को बंद रखें। हर बैरूनी सरगर्मी के बाद आंखें और हाथ धोएं। कसरत से पानी पिएं। आहिस्ता गाड़ी चलाएं और धुंध लाइट्स का इस्तेमाल करें। अगर आप दमे के मरीज हैं या दायमी फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला हैं तो अपने साथ हर वक्त इनहेलर रखें। चिन्योट में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन स्मोक फ्री पंजाब के तहत इक़दामात जारी हैं। चिन्योट पुलिस की जानिब से स्मोक कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जिले भर में कार्रवाइयां जारी हैं। धुआं छोड़ने वाले भट्टों, फसलों की बाकियात को आग लगाने पर 20 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। धुआं छोड़ने वाले भट्टों, फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 5100 से ज़ायद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और दीगर के खिलाफ 26 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना किया गया। DPO अब्दुल्ला अहमद के मुताबिक चिन्योट पुलिस की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। स्मोक की मौजूदा सूरत हाल खतरनाक, रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात जारी हैं। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए स्मोक की रोकथाम में अपना किरदार अदा करें। रनाला खुर्द में स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्ट्रीट लाइट्स बंद होने के बायस जराइम और हादसात में इजाफा हो रहा है। कई माह से मकामी इंतजामिया की गफलत की वजह से स्ट्रीट लाइट्स बहाल ना हो सकी। मजीद जान लेते हैं रनाला खुर्द से अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद अवैस से। जी, और इस वक्त कलमा चौक पर मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रनाला खुर्द की मेन शाहरा जो मुल्तान रोड को जाती है। ये शहर का मेन जो है वो शहर की मेन शाहरा है। यहाँ पर जो है वो स्ट्रीट लाइट लगी तो हुई हैं, लेकिन इंतज़ामिया के जो है वो अदम तवज्जो के बायस ये बंद पड़ी है, जिससे पैदल सवार और राहगीरों को जो है वो गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनको इस हवाले से किन परेशानी का सामना है। जी हाँ, ये कुछ दिनों से ये लाइटें बंद हैं, जिसकी वजह
से रात को सफ़र करना भी जो है हमारे लिए मुश्किल है, और यहाँ पर जो है ना हादसात का रूनुमा होना भी किसी बड़े सानही से कम नहीं है। यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार कार सवार जो यहाँ से गुजरते हैं तो दूसरा छोटी सवारी वाला जो है ना उसको नज़र आना जो है वो बंद हो जाता है। तो इसलिए हमारी इलाका मकीनों की यही दरख्वास्त है कि इन लाइट्स को जो है वो जल्द से जल्द जो है ठीक करवाया जाए, ताकि इलाका मकीन जो है वो अपना आसानी सफ़र जो है वो मुकम्मल कर सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका भी यही कहना था कि लाइट बंद होने की वजह से पैदल सवार और जो छोटी सवारी वाले होते हैं उनको शदीद जो है वो परेशान सामना है। इन्होंने एसी रिनाला और जो सीओ बल्दिया से ये मुतालबा किया है कि इनको जल्द से जल्द जो है वो ठीक कराया जाए, ताकि जो है वो पैदल सवार और जो यहाँ से गुजरते हैं इनको जो है वो परेशानी से बचा जा सके। जी, भावलपुर में महंगाई का जिन बेकाबू, महंगे तरीन बिजली और गैस के यूनिट्स के बाद रोजमर्रा के अशिया की कीमतों में भी आए रोज इजाफा। सब्जी और दालें भी दिहाड़ीदार तबके की पहुंच से दूर हो गईं। घी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम, अवाम परेशान। इस हवाले से मजीद जानते हैं भावलपुर के शहरियों से। कोई चीज पूरी नहीं होती, गेहूँ टमाटर मसाला कोई चीज पूरी नहीं होती। जो चीज लेने जाते हैं चीज हाथ से ज्यादा महंगी मिलती है, ऊपर से अब स्कूल के खर्चे भी है, आदमी क्या करे, कहाँ जाए। और बिजली के बिलों के कीर की हुई है, हम तंग आए हुए हैं, घर भी किराए का, बच्चों की मजदूर, खाने के लिए कुछ नहीं बन रहा है। सारा दिन कमाते हैं, शाम को ले जाके वो दिहाड़ी 1 मिनट में खत्म कर देते हैं। 800 रुपए दिहाड़ी वाला बंदा क्या करे, मुझे ये बता। घी लेने जो 600 रुपए किलो है। इस हुकूमत ने बिल्कुल ही गरीब को तोड़ के रख दिया है, गरीब मर रहा है, इनके लिए कुछ नहीं है। राजनपुर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आए रोज बढ़ती महंगाई ने मजदूर दिहाड़ीदार तबके को 2 टाइम का खाना भी दुश्वार कर दिया। सब्जियों, फलों, अशिया, खुर्दनोश के रेट आसमान से बातें करने लगे हैं। गोश्त खाना तो दूर की बात, दालें भी महंगी। शहरियों ने हुकूमत वक्त से महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। महंगाई इतना ज़्यादा थी गई कि जीवन महाल थी गए, हर चीज़ महंगी है। चीनी, आटा, दाल, हर चीज़, हर सौदा बड़े मुश्किल नाल गिनना पड़े। गरीब आदमी गोश्त क्या सब्ज़ी खाने से भी तंग है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। हुकूमत को अपील करना, ये जितना महंगाई है गरीब आदमी पैस गए, कोई रोज़गार का नहीं। महंगाई इतना के घर दे खर्चे पूरे नहीं थिंदे। मेहरबानी करे हुकूमत के महंगाई जरा कम करे। हासिलपुर सरकारी अस्पताल के फुटपाथ पर मछली फरोशों का कब्जा, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, अस्पताल आने वाले शहरी परेशान हैं। हासिलपुर सरकारी अस्पताल के गेट साथ मछली फरोशों का फुटपाथ पर कब्जा। अस्पताल के गेट के साथ कंडरी कचरे के ढेर, गेट के साथ लगी मछली मंडी के खड़े गंदे पानी से उठने वाली बदबू से मरीज और अस्पताल आने वाले शहरी मजीद बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। अस्पताल के बाहर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात। अस्पताल के एमएस ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि मछली फरोश हमारे मना करने पर जान से मारने की धमकियां देते हैं। मछली फरोशों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी, लैंड ऑफिसर हमारी दोस्ती है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर भी अवामी शिकायत के बावजूद बेबस दिखाई देते हैं। शहर भर के अवामी समाजी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि अस्पताल के गेट के साथ लगी मछली मंडी को फौरी किसी और जगह मुंतकिल किया जाए, ताकि अस्पताल आने वाले शहरी मजीद बीमारियों से बच सकें। सर्दी की आमद होते ही महंगाई से सताए शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। बेरोजगारी और माशी हालात से तंग सफ़ेद पोश तबका भी अपने और अपने बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए सस्ते दामों लंडे के गर्म कपड़े और जूते खरीदने पर मजबूर हो चुका है। मज़ीद देखते हैं कमालिया से आरजे जावेद भट्टी की ये रिपोर्ट। सर्दी की आमद होते ही महंगाई से सताए शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। बेरोजगारी और मुआशी हालात से तंग सफेद पोश तबका भी अपने और अपने बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए सस्ते दामों लंडे के गर्म कपड़े और जूते खरीदने पर मजबूर हो चुका है। शहरियों का कहना था महंगाई बहुत ज्यादा है, उनकी वजह नाल इत्थे आ गए सी बच्चों वास्ते और अपने वास्ते सर्दियों वास्ते चीज़ां खरीदने हैं बच्चों वास्ते। ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा हो। आसमान से बातें करती महंगाई के बायस जहां खरीदार परेशान हैं, तो दूसरी जानिब दुकानदार भी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। जी उस्ताद जी, असी ते कराची तो माल लैके आउंदे लंडा, इस दफा थोड़ी जी महंगाई सी उधर कराची विच। महंगाई ये देना सी, मिसाल अगे सानू थोड़ा जिहा 50% सस्ते मिलते सी, आज दफा सानू 100 रुपये महंगा मिला। शहरियों का कहना था कि गरीब तबका जहां पहले ही बिजली और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे से बदहाली का शिकार है, वहीं लंडे के कपड़े और जूते भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो रहे हैं। हुकूमत वक्त अवाम को रिलीफ दे ताकि अवाम सुख चैन से अपना गुजारा कर सके। कैमरामैन अवैस के साथ आरजे जावेद भट्टी, ABN न्यूज, कमालिया।
खेवड़ा में अल्लाह झेलम ड्यूल कैरेज वे ज़ेर तामीर मनसूबा 3 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। मनसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। 3 साल गुजरने के बावजूद भी अल्लाह झेलम ड्यूल कैरेज वे मनसूबा मुकम्मल ना हो सका। फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से मनसूबे पर काम तकरीबन बंद हो चुका है। मनसूबे पर काम करने वाली मशीनरी वापस चली गई है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मनसूबे को 2 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल होने के आसार नजर नहीं आ रहे। मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखते हुए निजी ट्रांसपोर्ट के मालिक ने 22 किलोमीटर गरीब वॉल ता पिंड दाद खान सड़क की मुरम्मत के काम का आगाज कर दिया है। हम इधर आए हैं हॉकी स्टेडियम देखने के लिए। हमें पता चला था कि इधर चंद दिन पहले एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट होने वाला है, तो हमने कहा हम हॉकी स्टेडियम देखते हैं। तो जब यहाँ आए हैं तो सूरत हाल ही अबतर है। जंगले टूटे हुए हैं, स्कोर बोर्ड टूटा हुआ है, यहाँ तक कि हॉकी के पोल के फटे भी टूटे हुए हैं। तो हमारी जो हकामे बाला हैं उनसे यही गुजारिश है कि इनको आज सिरे नौ इनको जो है मरम्मत किया जाए और स्टेडियम की हालत को बेहतर बनाया जाए। चौक सरवर शहीद थल जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी के नताइज का ऐलान कर दिया गया। आसिफ फजल चौधरी सबसे कम 18 मिनट 3 सेकंड में फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। फैसल शादी खेल 18 मिनट 12 सेकंड में 30 किलोमीटर का ट्रैक अबूर करके दूसरे नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान 18 मिनट 16 सेकंड में फासला तय किया और तीसरे नंबर पर रहे। तकरीब में गुलकार अपने फन का मुजाहरा भी करेंगे। नवी थल जीप रैली स्मो के बायस 200 किलोमीटर के ट्रैक को 30 किलोमीटर तक महदूद कर दिया गया था। सारी रैलीज में पार्टिसिपेट किए और मैंने 2019 वाली विन भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैक आज स्मॉग की वजह से शॉर्ट कर दिया गया है, 200 किलोमीटर से कम करके 30 किलोमीटर कर दिया गया है। तो इसमें फास्ट वो जो सेक्शन थे वो निकाल दिए गए हैं और 30 किलोमीटर जो शुरू किए हैं वो सिर्फ वहाँ तक होगा ट्रैक। और स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इन 200 किलोमीटर के रन में आप अपनी स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ सेक्शंस के हिसाब से बनाते हैं। और यहाँ पे जो पहला सेक्शन है ये काफ़ी टाइट और जिगजैग वाला सेक्शन है, तो पूरा पुश करना पड़ेगा अपने आप को इस शॉर्ट पैच के लिए। एंड वी आर होपफुल दैट वी विल विन इंशाल्लाह। ऑयल और घी की कीमतों में होशरबा इजाफा। एक तरफ हुकूमत की जानिब से महंगाई की शरह में कमी के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब महंगाई से अवाम बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। देखते हैं टोबा टैक्सिंग से मोहम्मद आसिफ नदीम की ये रिपोर्ट। हुकूमती मुआशी जादूगर आए रोज राय ब्लॉक के जरिए मुल्क में महंगाई की शरह में कमी का राग अलापते नजर आते हैं, जबकि मार्केटों में हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। रोजमर्रा अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर होशरबा इजाफा ने सार्फिन की चीखें निकलवा दी। अगर सिर्फ एक ही आइटम की बात की जाए, पिछले एक हफ्ता में वक्फा से ऑयल की कीमतों में 35 से 65 रुपए फी लीटर और घी की फी किलो कीमत में 30 से 55 रुपए फी किलो इजाफा देखने में आया है। ये रोज बर रोज जो घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हम गरीब लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह को एक पराठा खाना होता है, कहीं इतना महंगा ऑयल काफ़ी था, आगे हम 2 चम्मच की बजाय 1 चम्मच लगा के घी को इस्तेमाल करते थे, पराठा बनाते थे। अब हमारा पराठा भी सुबह के वक्त नाश्ता करना भी बहुत मजाल हो गया है कि ना हम नाश्ता कर सकते हैं, ना हंडी में इतना घी और ऑयल डाल सकते हैं। हमारा थम तो वाम है, पीसी जा रही हैं, पीसे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं। रोजमर्रा अशिया की खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा से जहां घरेलू सार्फिन मुश्किलात से दो चार होते हैं, वहीं मार्केट में खरीदो फरोख्त की शरह भी बुरी तरह मुतासर होती है। शहरियों का कहना है कि अवाम को आए रोज रिलीफ देने का राग अलापने वाले हुक्मरानों को चाहिए कि वो महज खोखले दावों से निकलकर अवाम को 2 वक्त की रोटी के हसूल में आसानी पैदा करने के लिए अमली इक़दामात करे और इस महंगाई के जिम्मेदारान के खिलाफ ठोस व मरबूत हिकमत अमली बुरुए कार लाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक्सिंग। फरोजवाला में केबल के तनाज़े पर भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। फायरिंग से कत्ल होने वाले शख्स की शिनाख्त मियां अयूब के नाम से हुई, जो सब्जाजार कॉलोनी लाहौर का रिहायशी था। मकतूल केबल के दफ्तर में मौजूद था कि भाई ने 2 साथियों समेत आकर फायरिंग करके भाई को कत्ल किया। मुल्ज़मान कत्ल के बाद सर पर खड़े होकर हुई हवाई फायरिंग करते रहे। गोलियों की थरथराहट से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। थाना फरोजवाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करते हुए मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी। इलाके में शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे। क्राइम की रेशो में दिन ब दिन इजाफा होते दिखाई देने लगा। शहरी का कहना है कि SHO फरोजवाला क्राइम पर काबू डालने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देने लगा है। फैसलाबाद में थाना मुरीदवाला के इलाके में 9 साला बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CPO कामरान आदिल की हिदायत पर थाना मुरीदवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाक़े में मुलविस 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। एक मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मुलजमान ने 9 साला बच्ची को वरगलाकर डेरे पर ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। CPO कामरान आदिल का कहना था कि बच्चों के साथ घिनौना फेल करने वालों को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। उकाड़ा के इलाका हजरा शाह मुकीम में प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल की छुट्टी जमात की तलबा से मुबैना ज्यादती मुतासरा लड़की और वर्सा का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने की अपील कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर 3 माह तक तालबा अपनी हौस का निशाना बना रहा था। मुतासरा लड़की ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलजिम नाज़ेबा तस्वीर भी बनाता रहा। निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने गन पॉइंट पर मुतअद्दिद बार ज्यादती का निशाना बनाया और धमकियां लगाईं कि अगर किसी को बताया तो कत्ल कर दूंगा। मुतासरा लड़की का इल्ज़ाम पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर कई रोज गुजरने के बावजूद ताहाल मुलजिम को गिरफ्तार ना किया जा सका। मुतासरा खानदान, मुतासरा लड़की और वर्सा का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने की अपील कर दी है। यहाँ पर खबर शामिल करें, आपको बताएं वज़ीर आज़म अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। आपको अहम खबर दें, वज़ीर आज़म अरब इस्लामिक सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। समिट की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म के मामले खसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। अहम खबर, वज़ीर आज़म अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो चुके। आपको खबर दें, समिट के साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म के मामले खसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। आपको खबर दें, वज़ीर आज़म अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, अटक थाना फतेह जंग पुलिस की कार्रवाई, तहरे कत्ल का मुलजिम बैरून मुल्क से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वसीम अकरम को इंटरपोल के जरिए बहरीन से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने 8 साल कबल घरेलू तनाज़े पर अपने साथियों से मिलकर बहनोई समेत 3 अफराद को कत्ल और एक खातून को जख्मी किया था। मुलजिम तहरे कत्ल की वारदात के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था। भक्कर MM रोड मुल्क पर मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई। भक्कर MM रोड मुल्क पर मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली बस हादसे का शिकार। धुंध के बायस बस ट्रक से किनारे खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। 2 अफराद मौके पर जाँ भाग जबकि 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा शदीद धुंध के बायस पेश आया है। चूनिया कूड़े सियाल शादी से वापसी पर कसूर प्यालपुर रोड पर खौफनाक हादसा, 3 अफराद मौके पर जाँ भाग, 3 शदीद जख्मी हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक शादी से वापसी पर ट्रैक्टर ट्रॉले की मोटरसाइकिलों को टक्कर से 3 अफराद मौके पर जाँ भाग और 3 शदीद जख्मी हो गए। वर्सा ने कसूर दयालपुर रोड को एहतजाजन बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मियों को लाहौर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फकीरवाला में शदीद धुंध की वजह से 2 मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जख्मी हो गए। फकीरवाली के नवाही इलाके 70-4R के करीब धुंध के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रालर में तसादुम के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि दूसरे ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल और ट्रक में टक्कर से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने शदीद जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शेखोपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग हो गया है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा लाहौर रोड कोट पंडी दास गांव में पेश आया। हादसा धुंध के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जहां भाग नौजवान की लाश को पुलिस की मौजूदगी में लावाहिकीन के हवाले कर दिया। जहां भाग नौजवान की शिनाख्त उस्मान के नाम से हुई है। लियाकतपुर के नवाही इलाके थाना तरना मोहम्मद पना की हदूद में मोजा मुल्कपुर में गरीब मजदूर के घर पर कब्जा करने की गर्ज से बासर जमींदार ने धावा बोल दिया। कब्रें खोदने वाले गरीब मजदूर ने बताया कि 30 साल कबल इलाके के जमींदार ने मुझे 1 कनाल 16 मरला जगह दी, जिसकी कीमत भी मैंने अदा कर दी थी। अब इलाके के बासर जमींदार ने 2 दर्जन से जायद गुंडों के हमरा मेरे घर पर धावा बोल दिया। मेरे घर की दीवारें तोड़ दी, बच्चों को मारा पीटा और जाते हुए कीमती सामान और नकदी भी ले गया। गरीब मजदूर सईद अहमद ने DSP लियाकतपुर को दरख्वास्त भी लिख दी, लेकिन DSP ने हमारी कार्रवाई नहीं की। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब और DPO रहीम यार खान से इंसाफ फराहमी करने का मुतालबा किया है। मुरीद के में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि PTI का सफ़र एब्सोल्युटली नॉट से तरले मिनटों तक पहुंच चुका है। उनका मजीद कहना था कि यू टर्न लेने वाले, बड़ा लेटर कहने वाले और सोच नाकाबिले तकलीद है। पंजाब को ठेके पर देकर होटलों में सौदेबाजियां होने लगी हैं। देखिए, PTI का सफ़र एब्सोल्युटली नॉट से शुरू होके अब तरले मिनटों पे आ गया। ट्रम्प पे उन्होंने अपनी उम्मीद लगा ली है, तो मैं समझता हूँ कि PTI वाले मुझे बताएं कि जो शख्स ये कहे कि सबसे बड़ा सियासतदान वो होता है जो यू टर्न ले,
अमेरिका मैं अब क्या कह सकता हूँ, अमेरिका एक मुल्क है, वो अपना मफादात की खातिर अपनी पॉलिसी बनाता है। वो अपने हर मुल्क के साथ उसके अपने तल्कात हैं, मुल्कों के साथ होते हैं, हुकूमतों के साथ होते हैं, ना कि किसी ज़ात के मुतल्लिक होते हैं। कि हाँ, हमारा कोई वास्ता लेना देना नहीं है अमेरिका के इलेक्शन से या ट्रंप के आने से। क्वेटा बम धमाके में शहीद होने वाले मियां चन्नू के रहायशी पाक फौज के हवालदार शौकत की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े में शहीद होने वाले पाक फौज के हवालदार शौकत की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में 8R में अदा कर दी गई। शहीद हवालदार को पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद की नमाज जनाजा में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद हवलदार को उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। सूफी बुजुर्ग साईं रब राखा सरकार के सालाना उर्स पर शानदार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। बरसगीर पाको हिंद के सूफी बुजुर्ग साईं रब राखा सरकार का 80वां सालाना उर्स पर इंटरनेशनल कबड्डी का शानदार मुकाबला फैसलाबाद और विहाड़ी के खिलाड़ियों में सख्त मुकाबला देखने को मिला। मुकर्रर वक्त में विहाड़ी ने फैसलाबाद को 25 के मुकाबले में 26 पॉइंट से शिकस्त दी। मुल्ज़िम ज़मीन की जानिब से जीतने वाली टीम को कैश प्राइज और ट्रॉफियां भी दी गईं। जर्मनी में मुकीम चौधरी तैमूर असलम और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पुरअमन और मोहब्बत वाला मुल्क है। हमारे पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में कोई फ़र्क नहीं, सब लोग मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा दिल करता है कि हम हर साल मेला देखने आए। पाकिस्तान में आकर बड़ा सुकून मिला। मेरी सारी फैमिली बहुत खुश है क्योंकि यहाँ के लोगों ने हमें बेपनाह इज्जत से नवाजा है। सरदार कुलवंत सिंह गुरबख्श सिंह ने कहा कि मेले पंजाब की सकाफत की सही मायनों में अक्कासी करते हैं। ऐसे मेले हमें पंजाब की इन रवायात से रोशनास करवाते हैं जो हमारे आबाओ अजदाद के दौर से चले आ रहे हैं। चढ़दे पंजाब ते लेंदे पंजाब में मेलों को फ़रोग देने के लिए दोनों तरफ की हुकूमतों को सरपरस्ती करनी चाहिए। हेलमेट का इस्तेमाल न करने के नुकसानात से आगाही फराहम करने के लिए बाइक राइडर्स की रैली लाहौर से सरगोदा की तहसील साहिवाल पहुंच गई है। रैली में मुतअद्दिद नामवर मर्द और खवातीन राइडर्स ने हिस्सा लिया। दर्जनों बाइक राइडर्स पर मुश्तमिल रैली की सरबराही मशहूर बाइक राइडर पन्नू ने की। रैली का मकसद हेलमेट का इस्तेमाल न करने के नुकसानात और हादसात की रोकथाम के हवाले से आगाही फराहम करना था। बाइक राइडर्स की रैली लाहौर से निकली और मुख्तलिफ शहरों से होती हुई सरगोदा की तहसील साहिवाल में जहानिया शाह के मकाम पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां बाइक राइडर्स ने मकामी सियासी नुमाइंदों के हमरा शहरियों और पुलिस के एहलकारों में हेलमेट्स भी तकसीम किए। बाइक चलाएं लेकिन हेलमेट सर पे ज़रूर पहने। हम लोगों ने कुछ अपनी तरफ से हेलमेट तकसीम किए हैं, पर हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी हेलमेट तकसीम करे और ये एक नेकी भी है, किसी की जान बचती है। चार सद्दा की तहसील शबकदर में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग, शौहर ने गोलियां मारकर बीवी और बेटे को कत्ल जबकि एक बेटी को जख्मी कर दिया। चार सद्दा की तहसील शबकदर में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग, शौहर ने गोलियां मारकर बीवी और बेटे को कत्ल जबकि एक बेटी को जख्मी कर दिया। जहां भाग होने वाले में 35 साल आयशा और 16 साल फैसल शामिल हैं। रेस्क्यू ने लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शबकदर मुंतकिल कर दिया है। थाना खानपुर में जेर हिरासत मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुलजिम साजिद शाह को गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने रात गए हवालात में गले में फंदा डालकर खुदकुशी की। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई है। मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है जबकि उसे शिकायत और आवारा गर्दी की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पर असलहा मंशियात समेत मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। खबर शामिल करें शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 4 ख्वारिज दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों को महफूज बनाने के लिए दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए पुरज़म हैं। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 4 ख्वारिज दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द ख्वारिज हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। आगे बढ़े आपको बताया, नौशेरा के इलाके अकोड़ा खटक में डकैत गिरोह घर में घुस गए। पुलिस के मुताबिक मालिक मकान की जानिब से डकैत गिरोह पर फायरिंग की गई। फायरिंग से डकैत गिरोह का एक डकैत जाँ भाग और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। दीगर जख्मी डकैत अफराद जख्मी हालत में फरार हो गए। जाँ भाग होने वाले डकैत की शिनाख्त जलील वल्द इब्राहिम के नाम से हुई है। जाँ भाग डकैत जलील गिरोह का सरबराह है। ताल्लुक नौशेरा गंडेरी से वाक़या है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लंडी कोतल शहर और इर्द गिर्द के पहाड़ स्मोक की लपेट में आ गए हैं। माहिरीन के मुताबिक भारत से आने वाली इस जहरीले स्मोक ने पहले लाहौर पर फिर मुल्तान और पेशावर को शदीद मुतासर किया, जबकि अब ये मगरबी इलाके लंडी कोतल पहुंच गया है और यहाँ से अफगानिस्तान दाखिल हो रहा है। माहिरीन ने लोगों को हिदायत दी है कि स्मोक के दौरान बाहर ना निकलें और निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें।
मरकजी ईदगाह रुस्तम में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ से ख़त्म नबूवत तहसील रुस्तम के ज़ेर तमाम सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िला मर्दान के अमीर कारी अकरामुल हक और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारा बुनियादी अक़ीदा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम आखिरी सांस तक करेंगे। नौजवान नस्ल अक़ीदा वहादानियत वो अक़ीदा और रसालत व अक़ीदा ख़त्म नबूवत से बाखबर रहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मुकर्रीन ने कहा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब पर लाजिम है। अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों खूबसूरत बनाएंगे। तकरीब के आखिर में मेहमान ख़ुसूसी कारी अकरामुल हक ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क व कौम की सालमियत इस्तेहकाम के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी मांगी हैं। ठट्टा में कौमी शाहराह पर धुंध के बाइस 6 गाड़ियां टकरा गई हैं। हादसे में 5 अफराद जाँ बाक और 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा धुंध के बाइस पेश आया है। भूसे से भरे ट्रक से गाड़ियां टकरा गईं। जय वक़्वा पर मौजूद SHO घारो मोहम्मद अली धामरा ने मीडिया को बताया कि जख्मी और जाँ भाग अफराद कराची मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हमने नेशनल हाईवे पर से तमाम गाड़ियों को हटाकर रोड को क्लियर कर दिया है। नोडेरो के करीब थाना गढ़ी खुदा बख्श की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। नोडेरो के नवाई गांव में फ्रिकैने में तसादुम से 2 अफराद जाँ भाग हो गए। इतला मिलते ही पुलिस जाए मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें नोडेरो अस्पताल मुंतकिल कर दी। DSP नोडेरो का कहना था कि 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद जाँ भाग हुए हैं। पुलिस ने वाक़े से मुतालिक तहकीकात का आगाज कर दिया है। कबूत सईद खान थाना की हदूद पर डकैती की कोशिश, मुजामत पर डाकुओं ने फायरिंग करके मोटरसाइकिल सवार को कत्ल कर दिया। गांव अख्तर चांडियों का रिहायशी 35 साला नौजवान को डाकुओं ने असले के जोर पर मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मुजामत पर डाकुओं ने फायरिंग करके मोटरसाइकिल सवार को कत्ल करके फरार हो गए। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। इतला पर DSP शहदाद कोट सनाउल्लाह सियाल रूरल हेल्थ सेंटर पहुंच गए। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हरनाई गुज़िश्ता रोज मांगी में नामालूम अफराद की SP हरनाई की गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में हरनाई पुलिस का नौजवान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। हरनाई एक्शन कमेटी की जानिब से शहर भर में अमन अमान की सूरत हाल पर बादशाह खान चौक से रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने पूरे शहर का चक्कर लगाया और बादशाह खान चौक में मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन की जानिब से शहीद खलील मलाजी के कातलों को गिरफ्तार करने, हरनाई टू क्वेटा रोड बनाने, हरनाई टू संजावी रोड को बहाल करने और गुज़िश्ता रोज मांगी में होने वाले वाक़े की सख्त मज़म्मत की गई है। मुजाहरीन ने कहा कि ट्रकों के जलाने के नुकसानात का अजाला किया जाए, शहीद खलील मलाज़ाई को इंसाफ दिया जाए, हरनाई में अमन अमान यकीनी बनाया जाए। बसूरत दीगर हम अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। रुख करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर का। तत्तापानी के बड़े मरकज शहर रूरल हेल्थ सेंटर तत्तापानी की अपग्रेड ना हो सका। इस इलाका को मुश्किलात का सामना है। रूरल हेल्थ सेंटर तत्तापानी जो कि 3 अजला कोटली, पूंछ, सधोंती के सैकड़ों देहातों के लाखों आबादी और LOC के हजारों मकीनों का वाहिद बड़ा मरकज सेहत है, जिसे अपग्रेड करने का आवाम का तवील अरसे से मुतालबा चला आ रहा है। अहलियान तत्तापानी की जानिब से उसकी अपग्रेडेशन के लिए एक भरपूर तहरीक भी चलाई गई थी और तवील धरना दिया गया था, जिस पर वज़ीर सेहत डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने खुद तत्तापानी आकर जिम्मेदारान से मुज़ाकरात किए थे और RHC तत्तापानी की अपग्रेडेशन का वादा और ऐलान किया था। बाद अज़ां वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने भी अपने दौरा तत्तापानी के मौके पर जलसे आम से उसका ऐलान किया था। हल्का MLA वज़ीर हुकूमत भी अहलियान तत्तापानी को मुतअद्दिद बार RHC तत्तापानी के अपग्रेडेशन की खुशखबरियां दे चुके थे, मगर हाल ही में हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से दिए हेल्थ पैकेज में RHC तत्तापानी को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से RHC तत्तापानी के अपग्रेडेशन की खुशखबरी के मुंतज़िर अहलियान तत्तापानी सख्त मायूस हुए और शदीद तशवीश पाई जा रही है। अहलियान तत्तापानी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, वज़ीर सेहत डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली और दीगर सर जोर मुतालबा किया है कि अहलियान तत्तापानी के साथ किए गए वादों को पूरा किया जाए और RHC तत्तापानी को अपग्रेड करके अहलियान तत्तापानी राजमहल का दरीना मुतालबा पूरा किया जाए। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके में हजेरा के एक शहरी भी जाँ भाग हो गया। हजेरा के इलाके पनियाली सियाड़ी के रिहायशी चौधरी अशरफ नामी शहरी क्वेटा में ही नौकरी करते थे और रेलवे स्टेशन पर भी मेहनत मजदूरी करते थे। आज रेलवे स्टेशन पर होने वाले धमाके में शहीद हो गए। वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर सरदार आमिर अल्ताफ ने उन समेत तमाम शहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का दौरा कोटली सहनहा पहुंचने पर मरकजी चौक में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। अहलियान सहनसा ने ढोल की थाप पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मरकजी सहनसा
चौक पहुंचने पर खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को जुलूस की शक्ल में जलसा गाह ले जाया गया। कचहरी चौक सहनसा में भी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के काफिले पर गुलपाशी और ज़बरदस्त नारेबाजी में इस्तकबाल किया गया। जुलूस में मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से मुतल्लिक रखने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जलसा गाह आमद पर वही वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर पर गुलपाशी और ज़बरदस्त नारेबाजी में इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी रियाज, वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थे। वज़रा हुकूमत निसार अंसार अब्दाली, चौधरी यासिर सुल्तान, चौधरी मोहम्मद इखलाक, जावेद इकबाल भटानवी भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद हैं। मुजफ्फराबाद के इलाके मनियारा में 4 बच्चों ने जहरीली गोलियां खा ली हैं। तहसील पटका भेड़ी मनियारा के इलाके में 4 कमसिन बच्चों ने घर की छत पर रखी चूहे मार दवाई खा ली। मकामी लोगों का कहना है कि 2 बच्चे जाँ बाक हो गए जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। चूहे मार दवाई मकई के गल्ले में रखी मिठाई में मिलाकर रखी हुई थी, जिन्हें खेल कूद में मसरूफ 4 बच्चों ने खा लिया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल हादी और मोहम्मद सहुलन उम्र 4 साल और 6 साल है। तशवीशनाक हालत में CMH मुजफ्फराबाद में दाखिल हैं और जहाँ भाग होने वाले बच्चों की नमाज जनाजा आबाई गाँव में अदा कर दी गई है।